Hi, I am Roop Darak from A&I Magazine, Hyderabad, Arkin Publications Private Limited. So, I am with a person who doesn't need any introduction. Raghav Kabra from Madhusudan Marble, the Pavilion. A person from Swift to Mercedes Benz and from the 2000 square yard of studio to 16,000 square yard of studio. The Pavilion. Hi Raghavji, how are you? I'm fine. How are you, Roopji? I am doing great, Raghav bhai. First of all, I am very thankful to you. I know your schedule. It's always very tight, but still you have taken out time for our session. Thank you so much, Raghav bhai. It's my pleasure you are here, boss. It's my great pleasure. So we are sitting in Madhusudan Marble, the Pavilion, a beautiful studio of Italian marbles, exotic stones, designed by a duo Rahul Varun sir from Think Design. Raghav bhai, what do you mean by the Pavilion? Pavilion is a place जहाँ पे आदमी रिलैक्स कर सकता है, एक माइंड सेटअप से फ्री होके काम करता है. सेम लाइक इसको पवेलियन, अ बिग एरिया वेयर यू गेट अ रिलैक्सेशन मोड एंड गेट योर वर्क डन. Okay. I would like to know about your journey because I am associated with you since you came to Hyderabad in 2006. From 2000 square yard to 16,000 square yard. From Swift to Mercedes and BMW. How was this journey? Can you please discuss with us? Great. Thank you for asking me this great question. Roopji, it was a very difficult time when I came in 2006. Yeah. That time, your brother Kamal Bhaiya and Jagat Bhaiya supported me a lot, telling you frankly. Great. That time, AI Magazine was handled by Jagat Bhaiya. Yeah. He used to take me along with all the architects. He used to make me meet with all those people. He helped me a lot. But that was very tough time. I used to travel on a bike. Any project which I come to know that it's going on, I immediately go to that site, meet people there, architects, their contractors, and try to build up a relation. And those are relations has helped me to grow like this. So, what was the turning point of Madhusudan Marble that from a store it turned to a landmark? Do you remember any of the turning point? I remember all those days. That was a very difficult time when I came. It was very difficult to meet people because they were like, I was new to Hyderabad, not knowing anybody. True. Going to people, they used to make me wait for long and long hours, but I was very eager to meet them and try to make a relation. So, how do you find Hyderabad? Oh, very nice place, very helpful people. And if I'm not wrong, your younger brothers are just next to our city. They are in Bangalore. Yeah, they are in Bangalore. So they are also into same industry? Yeah, they are also in the same industry. We have a factory there. We have a retail showroom there. Okay. And those all things are going on. We are importing marble. They are cutting marble there and I'm selling it here. Okay. So basically you have a plant in Bangalore? Yes, we have a plant in Bangalore, Jaipur, Kishangarh, Udaipur. Your base is from Rajasthan, Yeah, basically. we are basically from Rajasthan. Okay. Son, how do you manage this humongous store, Raghav bhai, with a, if I'm not wrong, more than 10 lakh square foot of material is stored here? Yes, how I do you have manage around 11 lakh square feet inventory with me. Great. I have got marbles, Italian marbles. I will not say Italian marble. It is an imported marble. Okay, true. From around the world. Yeah. We have a local Indian granites. We have a quartzites from Brazil, which we are catering to people. We are making relations with architects, with clients, and selling them the required design of them. This single stress store have more than 15 lakh square foot of showrooms, if I'm not wrong. Yeah. So how you stand different from all in this competitive market? Our pricing, quality, and the most important relation that I carry and make it different from rest of people. So at times architects comes with a different mood that he need this kind of stone which is generally not available with you, with some grains in his mind or some reference image with him. So how do you cope up with such situations? See, every people have something or some other thing in their mind because their perception, their way of presentation, everything is different. But I make sure that I arrange whatever possible because I have got good inventory in my factories. So I try to make it out from there. If not, we travel with architects, with client or ourselves to Turkey, Italy and source the material and fulfill their needs. Though, and huge variety, quantity is again a huge. So how do you
balance the quality check? See, we travel personally. Okay. We have a different kind of segments where we can cater. Somebody needs only material, they don't want quality. We have that kind of customers also that we cater only from factory. We don't bring all those kind of metal to retail stores. Okay. Here we check quality personally. If something wrong, I have 3-4 persons at every stage. If something wrong, we make them aside, and those who want in tile form or something, we give them that material. जैसे आपका ये बिजनेस है, इसमें आपको पर्सनली जाना पड़ता है, मार्बल सेलेक्ट करने के लिए क्वेरीज में जाना पड़ता है, देन इट गेट कट, फिर वो जो भी पॉलिशिंग सिस्टम होता है, देन वो ग्रुप में यहाँ पे बन के आता है. सो व्हाट इज द मोस्ट टफेस्ट अमंग ऑल दिस? Selection at the quarry. ओके. बिकॉज वहां पे माल अपन लेते हैं, वो वहां क्या निकलेगा वो यहाँ आने के बाद डिसाइड होता है. सबसे डिफिकल्ट सिलेक्शन. सो क्योंकि जब दिखता कुछ है, अंदर कटने के बाद उसमें कुछ भी आ सकता है. ओके. ये एक आइसक्रीम लॉक की तरह है, अपन काटते हैं अंदर चेरी और कहीं कुछ भी निकलता है वैसे. ओके. सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट व्हेन यू सेलेक्ट कि अंदर क्या आएगा? यस. बट अब वो तो एक्सपीरियंस से मालूम पड़ गया है कि उसको कैसे क्या आता है, कितना डेप्थ तक आएगा, कितना नहीं आएगा. So when you travel abroad, like as you said, Turkey, Brazil, all over world, in fact, so you have to visit quarry to select the material Yes. every time. Every time we have to go personally because कोविड में ये हुआ था, हमने फोटोज पे काम करना चालू किया था. वो भी अपने से ज्यादा श्रूड है. क्रैक वगैरह कुछ भी होता है दिखाते नहीं. True. वो फोटोज की शेयर नहीं करते हैं. यहाँ आने के बाद वो अपने लिए डेड इन्वेंट्री हो जाती है, और अपने लिए सबसे बड़ी कॉस्ट है. वो उसको बोलते हैं मैं इसकी कॉस्ट कंपनसेट कर दूंगा, पर अपने लिए ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट वो तो लग गया, उसको रिइंबर्स नहीं हो सकता. And for Madhusudan Marbles, what is the most exciting project in this your 18 years journey? Sorry. सी, मैं हैदराबाद में मोटा मोटी सब सारे ज्वेलर्स को माल दे रहा हूँ, सारे रेजिडेंशियल पे कैडर कर रहा हूँ. टाटा का भी हमने बड़े बड़े 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आदि पटला और यहाँ सब आ रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस है. वेस्ट इन होटल वगैरह, होटल इंडस्ट्री में टाटा ताज की ग्रुप के होटल्स, हम सब ये सब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. Okay. So you work on projects and retail both. यस. जहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस काम है वहाँ हम पर्सनली ध्यान देख के और सब वो वैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. जो ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है जिनको क्वालिटी अवेयरनेस नहीं है, हम वो अवॉइड करना चाहते हैं. Okay. So maximum you're into a good quality product. क्वालिटी basically. यस. One of your favorite Italian stone you personally like or imported stone? To आई be विल से precise. द बेस्ट ऑफ ऑल इज सतवारियो. Okay. सतवारियो. अब क्योंकि वो एक तो वाइटनेस में बहुत अच्छा है, सेकंड क्रेजी ग्रेन्स है, प्राइसिंग बहुत एब्जॉर्बेंट हाई है, बट उसकी जो एलिगेंसी घर में लगने के बाद आती है वो कोई दूसरा मैच नहीं कर सकता. And when you sell the material nowadays, the trend is changing. People prefer the person should come with the solutions. So do you even provide the solutions when they? डेफिनेटली वो तो सबसे पहले वो सर्विस पार्ट है. आज Okay. आप मेरे पास आएंगे या कोई आएगा, वो सर्विस में अगर गुड है तो ही वो अपने पास रुकेगा, नहीं तो बहुत जने और दूसरी चीज देने के. Madhusudan Marble was a game changer in this industry in Hyderabad. So what innovations you brought, Raghav bhai, that it became a game changer? देखिए, हमने सबसे पहले अत्तापुर जुबली से अत्तापुर शोरूम शिफ्ट किया था. Yeah. तो हमने जो शेड बनाया, द वे वी क्रिएटेड द शेड ऑफ किरबी, दैट वाज नोवेयर इन द सिटी. Okay. वो किसी के पास भी नहीं था. देन वी केम टू शमशाबाद, द वे वी प्रेजेंटेड, दैट टाइम ओनली मधुसूदन मार्बल वाज कारपेटेड स्टोर, नोबडी एल्स वाज कारपेटेड. Okay. The way we presented our lobby, reception area, nobody had there. That was my USP. वो एक So, different game changer. You can even say thanks to Rahul Varun for Yes, that. definitely. Especially. A very good thanks to him. The way he designed my And store. especially I love that your table, backdrop of your table and your reception wall, which is done in Satvario. He was very particular about my cabin, about the reception area, about the way a customer enter and feel like a wow factor. True. That's basically Italian is a luxury product and it's display the pure luxury. Exactly, exactly. As you said, you are there pan India, maintaining low pan India. How do you manage the things? Because her city का, her state का अपना अपना different taste है. So how do you cope up with that tough situation? See, this is very good question you asked, because this is like people are nowhere aware कि इसमें कितना हार्ड वर्क आता है. किशनगढ़, उदयपुर, यहाँ हमारे लिए पूरा इंडिया मैच होता है, तो हमको वहां पे सब चीज का टेस्ट मेंटेन करना पड़ता है. Okay. हैदराबाद में साउथ जोन कनेक्ट होता है, बैंगलोर रेस्ट ऑफ द साउथ कनेक्ट होता है, तो ठीक है यहाँ पे प्लस माइनस चलता है, यहाँ पे यहाँ के हिसाब से टेस्ट लग गया. इंडिया लेवल पे पूरा हमको मेंटेन करना पड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इतना फ्रीक्वेंट हमको ट्रैवल करना पड़ता है. And you recently you have started a quartz manufacturing plant also, if I'm not wrong, by name MQ. MQ. So yes. you are supplying that in India also, or you are just exporting it? No, right now we are just exporting. That is because
उसमें कुछ लिमिटेशन है. Export is 30 mm. India market asks for 20 mm, and then there is a difference in size also for local market. So that metal is basically for export. Yes, we are catering India also. We are making some dealers. Okay. We are supplying to them, but we can't focus on that because our core is export only. When it comes to quartz, Quartz, definitely. now when it comes to flooring, there are n numbers of options available in today's world. लोग सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी की इटालियन मार्बल फिनिश टाइल्स भी दे देते हैं. So your say on this, on how do you compare Italian marble and tile? Though it is natural and artificial product. सबसे बड़ी चीज है आर्टिफिशियल रहेगा. True. हमारे खुद के क्वार्ट्ज फैक्ट्री है. Yeah. पर मैं ये नहीं बोलूंगा एक आर्टिफिशियल हमेशा एक डेड लुक देगा. नेचुरल एक फील गुड फैक्टर है. जॉइंटलेस दिखता है, टाइल में जॉइंट्स दिखते हैं. दोनों के बहुत प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों के मेरिट डिमेरिट्स अलग अलग हैं, बट एक नेचुरल फील जो आती है वो और कोई चीज नहीं दे सकता. और whenever, जैसे अभी आपने बताया था, जब आप इंपोर्ट करने जाते हो, द मोस्ट ऑफ जॉब इज एट द क्वेरी. आप मटेरियल सेलेक्ट करते हो, अंदर क्या आएगा क्या नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज असर्टेन. Yeah. कोई चीज अगर वहां से आप सेलेक्ट करके आते हो, कोई पर्टिकुलर किसी आर्किटेक्ट के लिए, अगर वो मटेरियल आने में जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं रहा, तो हाउ डू यू डील दैट विद दैट सिचुएशन? हाउ डू यू कन्विंस द आर्किटेक्ट? See, we tell him the truth, what is there, what problem is coming up, what has come up. उसके बाद he has to take a call. We don't force him कि नहीं मैंने आपके लिए इंपोर्ट किया, आपको लेना ही पड़ेगा. If he is comfortable, ठीक है, उसको मैनेज कर सकता है, we can play. मैं कोई भी आर्किटेक्ट को ये कभी भी फोर्स नहीं करूंगा कि मेरी वजह से उसकी कोई डिजाइन भी करें. नहीं, आई रिमेम्बर वन सर्विस यू हैव गिवन टू कमल भैया, स्पेशली बिकॉज कमल भैया बोला था कि किसी साइट पे आपका कुछ 4000 स्क्वायर फुट पत्थर आया था, लग गया था, बट देयर वाज सम, कमल भैया डिडंट लाइक, सो यू हैव रिप्लेस्ड एंटायर स्टोन. 100% मैंने वो कमल भैया के साथ पूरा किया था. पूरा Yeah. माल वापस नया भेजा. या कमल भैया सेड में, कमल भैया ने पूरा वो माल निकलवाया, वापस लगवाया. so this gestures of you have made from 2000 to 16000, I guess. Exactly. Now you know the truth. What is the truth of Because about I know from Kamal Bhai you might have done for Yes. n number of professionals Yes. in Hyderabad. We never let down the client, the architect, because of our product. Some problem may come. This is a natural product. Very true. We don't know what is coming up. So we try our best to give the best possible service. For me, making money is different. But first of all is my first liability or first asset is my customer. Very true. जैसे बेसिकली you're into trading. Yes. मतलब आप कोई आपके पास आता है, मटेरियल सेलेक्ट करता है, भिजाते तो if at times client or architects want you to visit the site, do you visit? 100%. Why will not visit? No, मतलब हमारे generally उससे- it's my question भाई. नहीं, जैसे क्लाइंट को मिलने से और करने से उसके कहीं कोई और चीज है, आर्किटेक्ट से भी हमको समझ में आता है. हम हमारे तरफ से इनपुट दे सकते हैं, सर ये एक प्रोडक्ट है आपके, ये अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा. वी कैन गिव आवर इनपुट्स आल्सो. एंड हमारे लिए भी एक वर्ल्ड एक्सपेंशन होता है कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी कैन ब्रिंग मोर. true. और what is the percentage of repetitive clients, राघव भाई, since you started your journey in 2006? सी ये आपने बहुत एक अच्छी बात पूछी है. मेरे पास 2008 में एक क्लाइंट माल लेके गया था. 2014 में उसके इन-लॉज का घर बना, वो मेरे से लेके गया है. और अब वो वापस नया घर बना रहा है. एक साल पहले अभी वो भी मेरे से वापस यहाँ शमशाबाद से माल लेके. So credibility, Yes, yes. services, Yes, material Mr. what you have Srinivas given. From Alwal area. Okay. He is repetitive my client. और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो मेरे पास repetitive clients हैं. And एंड सबसे बड़ी मेरी सेल वो ही है. मेरी आज की डेट में रूप जी मेरी सेल वो ही है जो मेरा पीआर है. true, या very true. I know. कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो अपने आप बोलता है अरे यार वहां चले जाओ, वहां आपको सब चीज अच्छी मिलेगी. कोई प्रॉब्लम भी है तो अगले बोल के देंगे ये प्रॉब्लम. एंड जब आप मटेरियल, आपको हैदराबाद से अगर कोई दूसरी स्टेट्स में भेजना हो या दूसरे सिटी में अगर आपको कोई मटेरियल भेजना हो, सो लेबर इज द बिगेस्ट इश्यू इन योर इंडस्ट्री. मोर एवर इट इज अ वेरी हेवी मटेरियल टू लिफ्ट एंड डू ट्रांसपोर्ट ऑल द वे. वो टाइम पे आपको बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ ट्रांजिट जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एट टाइम स्टोन गेट्स ब्रेक, कुछ होता है. सो दैट सिचुएशन क्लाइंट्स गेट क्रैंकी, आर्किटेक्ट्स गेट क्रैंकी. Yeah. तो उस सिचुएशन को अगेन सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस पॉइंट है हमारे उसमें. जैसे यहाँ से तिरुपति गया, यहाँ से नेल्लूर गया, कोई प्रॉब्लम आई, ओवरनाइट लगता है. मेरे यहाँ से टीम जाती है, उसको वहां सही करती है. जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट भेजते हैं. नहीं तो पीस को कोई क्रैक हो गया और हो गया, उसको स्ट्रेट किया, सही किया, कस्टमर सेटिस्फाइड. and I have seen there are stones which are available in different finishes. मतलब तो you get them this finishes and give it to them or ask the client to get it done on their own? नहीं,
We will do that services from our part. हमारे Okay. उदयपुर फैक्ट्री में CNC मशीन्स का पूरा सेटअप है. Okay. We do all finishing whatever you want, but it take time. वो जनरली जो क्लाइंट आप देता है, समझता है. टाइमलाइन से आप दे देते हाँ, हैं उनको. हाँ, हाँ. वो टाइम लैग में हम उनको सप्लाई करते हैं. And you have seen our magazine A&I. How do you find our magazine? उसके betterment के लिए अगर आपको हमको कुछ suggestion देना है, some advice. तो रूप जी, मैं आपसे 2006 से इस मैगजीन से एसोसिएट हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए आज तक आपसे 100% सेटिस्फाइड हूँ. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. मेक इट कंटिन्यू. इसमें कोई कॉज एंड इफ एंड प्रॉन्स नहीं है. कंटिन्यू विद इट. इट इज वेरी एक्सीलेंट मैगजीन एंड इट इज डूइंग वेरी गुड द सिटी. अभी हम लोग देख रहे हैं में जैसे देयर आर मेनी एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आ रहे हैं. यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री, दो यू आर नॉट एन आर्किटेक्ट, नॉट एन इंटीरियर डिजाइनर, बट यू हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्ट्स ऑफ हैदराबाद. डायरेक्टली कभी कोई आएंगे, कोई क्लाइंट के थ्रू आएंगे. सो any message you would like to give to some aspiring architect for selecting the material, or if they are interested in touring your store or touring your factory, so are you ready to support I'm them? willing to it. If anybody, any group, they want to visit our factory, our store, they are most welcome. क्या क्या वो यहाँ आएंगे तो हम उनको कई चीज समझा सकते हैं Yes. कि कैसे कोई चीज गलत है, कोई चीज सही है, और वो अपने डिजाइनिंग में और चीज में कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दे ऑल्सो एडवाइज अस बिकॉज दे आर न्यू ग्रोइंग एज स्टूडेंट्स. हमको क्या सही करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट लाइन और बढ़ानी चाहिए. दे ऑल्सो कैन गाइड अस एट एनी टाइम. Basically, I have seen Italian which are used on two places. One is flooring and one is cladding. So इसमें भी कोई स्टोन का डिफरेंस होता है राघव भाई कि दिस स्टोन इज प्योरली डेडिकेटेड फॉर क्लैडिंग, जिसको आप फ्लोरिंग में नहीं यूज कर सकते हैं? देयर आर फ्यू लाइक ट्रेवेंटाइन्स और जो आते हैं लाइमस्टोन बेस्ड जो स्टोन आता है वो बहुत पोरस रहते हैं. ओके. दे आर नॉट मेंट फॉर फ्लोरिंग, दे आर Okay. ओनली फॉर क्लैडिंग, जहाँ पानी का यूसेज कम से कम. ओके. नहीं तो वो पानी पी के कलर चेंज हो जाएगा, पैचेस दिखेंगे लाइफ लॉन्ग, वो प्रॉब्लम आती है. तो देयर आर फ्यू स्टोन्स वो सेग्रीगेट करते हैं. हम यहाँ पहले गाइड भी करते हैं क्लाइंट को भी, डिजाइनर्स को तो आइडिया रहता है, हम क्लाइंट को गाइड भी करते हैं दैट ये पर्टिकुलर मटेरियल केवल क्लैडिंग के लिए, ये फ्लोरिंग के लिए. बट देयर आर वेरी मतलब बहुत कम रहेंगे. बहुत कम ऐसा. बाकी हर स्टोन आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ओके. एंड राघव भाई, इतने क्लाइंट से आप मिलते हो, इतने डिजाइनर से आप मिलते हो, डेफिनेटली सेलेक्टिंग मटेरियल इज अ फन अगेन. सो एनी ऑफ द फनीएस्ट इंसिडेंट यू रिमेंबर? अरे रूप जी, आपको बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया हुआ था. अमेजोनाइट करके एक मटेरियल आता है ब्राजील का, अमेजोनाइट. ओके. दैट इज 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए रेंज में आता है. मेरे पास एक लॉट था, आर्किटेक्ट से डिस्कशन पर स्क्वायर फीट. पर स्क्वायर फीट. ओके. तो क्लाइंट से डिस्कशन चल रहा था. मैंने आर्किटेक्ट ने प्राइस पूछी, मैंने बोला 16,000 रुपए फुट, 16,000 रुपीज पर एसएफटी. ओके. क्लाइंट धीरे से आर्किटेक्ट को साइड में लेके गया. सर, उसने ये 16,000 रुपए पूरे पीस की रेट बोला है. मैं बहुत हंसा. आर्किटेक्ट ने बाद में मेरे को बताया कि क्लैरिफाई करो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है. मैं बोला सर ये तो 70 फुट की स्लैब है, 16,000 की रेट में पूरा स्लैब लेके जाएंगे तो क्या रेट का? इस रेट में तो टाइल भी नहीं मिलेगा. हाँ. 70 फुट का टाइल भी नहीं मिलेगा. 70 फुट की टाइल भी नहीं मिलेगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज बुक मैचिंग राघव भाई? आई वांट टू नो अबाउट बुक मैचिंग. लोग स्टोन लगा के देखते हैं, क्या व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? कैन यू एक्सप्लेन दैट? बुक मैचिंग इज बेसिकली एक स्लैब में ग्रेन ऐसे जा रहा है, हाँ. उसका अपोजिट स्लैब में ग्रेन क्रॉस जा रहा है. दो पीस जब मैच होते हैं ओके. तो वो एक वी फैक्टर, डायमंड फैक्टर, कुछ ना कुछ फिगर क्रिएट करता है. उस फिगर को वो बुक मैच बोलते हैं. जो आप घर में दो पीस डिस्प्ले करते हैं या आपका बड़ा स्पैन है, जब 2 3 4 पीस मैच हो जाएंगे तो वो एक एरिया के स्पैन क्रिएट करते हैं, एक फिगर क्रिएट करते हैं. उस फिगर को बुक मैच बोलते हैं. सो जो आप लॉट फॉर्म में लेके आते हो उसके पीछे नंबरिंग होती है क्या? हर पीस पे जैसे भी मशीन से कटता है, हर पीस पे 1 2 3 4 नंबर होते हैं. 1 से 2 मैच करो, ऑटोमेटिकली बुक मैच हो जाता है. ओके. ऑटोमेटिकली फिगर मैच हो जाता है. बेसिकली बुक मैच किया, फिगर मैच हो जाता है. सो दिस इज द पॉलिसी फॉलोड बाय एवरीवन. यस. क्योंकि नेचुरल स्टोन में ऑटोमेटिकली ग्रेन्स मैच होता है, उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है. केवल नंबरिंग प्रॉपर होगी. आप 1 से 6 नंबर मैच करोगे, नहीं करेगा, बिकॉज ये नेचुरल स्टोन है. ग्रेन्स नीचे से आगे तक मूव करता है. ओके. तो अगर कुछ साइज में इशू हो तो इफ दे गिव द जॉइंट देन दे हैव टू ऑटोमेटिकली मैच. इट मैचेस. तो आप 1 से 6 स्लैब तक लेके चले जाओ तो ऑटोमेटिकली 1 से 2 मैच करेगा, 2 से 3 मैच करेगा, 3 से 4 मैच करेगा, ऐसे पूरा लॉट मैच करता है. ओके. एंड देयर आर सम स्टोन्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो हाउ डू यू व्हाट डू यू कॉल दैट? उसको आप लोग कैसे नोटिस में लाते हो कि दिस इज द ये स्टोन का? देखिए, जैसे सतवारियो व्हाइट बेस का कोई भी मटेरियल है वो एब्जॉर्बेंट रहता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कंटेंट कम बहुत हाई रहता है. ओके. इसलिए वो पोरस रहता है. थोड़े लाइमस्टोन्स वगैरह जिनकी कैटेगरी मार्बल की नहीं है, ओके, वो सब पोरस रहेगा.
तो उसको रोकने के लिए कोई ट्रीटमेंट होता है? आजकल बहुत अच्छे सीलर्स आ गए, केमिकल ट्रीटमेंट्स आ गए, बैक सीलर होता है, पोस्ट सीलर होता है, 100% नॉन पोरस बन जाता है माल। Okay. So overall, it was great discussing with you, Raghav bhai, and really applaud for your great journey from 2,000 square yard to 16,000 square yard. Thank you very much. Thank you very And much. I remember your Swift and I remember your Mercedes both. It's my pleasure, Ruchi. Thank you, Raghav bhai. Thank you Thank so you much. so much.